নমস্কার, বাংলা স্ফিয়ারের আজ রাতের শেষ ভিডিও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। 1934 সালের ঘটনা। বিহারে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়ে গেল এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সেটাকে প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে বর্ণনা করলেন। কেন হঠাৎ প্রকৃতি বিহারীদের উপর এই প্রতিশোধ নিলেন? কেননা বিহারীরা দলিতদের এখনো অচ্ছুত বলে মনে করে এবং সেই পাপের ফলস্বরূপ প্রকৃতি মাতা বিহারীদের সবক শিখিয়েছে। আজকে 2025 সাল, ভারতবর্ষে কোনো গান্ধীজি নেই, কিন্তু আমি যদি এই গান্ধীজির কথাটারই প্রতিধ্বনি করে একটু অন্যভাবে বলি যে মহাকুম্ভ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের যোগী প্রশাসন যে ভয়ঙ্কর রকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল এবং তাতে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সংগত করেছিল, সেই পাপেরই ফল ভুগতে হচ্ছে আজ পুণ্য লোভাতুর পুণ্যার্থীদের। কতজনের মৃত্যু হয়েছে? 30 জনের মৃত্যু হয়েছে শাহী স্নান করতে গিয়ে ধস্তাধস্তিতে। গতকাল নয়াদিল্লি স্টেশনে যে কাণ্ড ঘটেছে আপনারা টেলিভিশনে দেখেছেন, চোখে দেখা যায় না এমনই মর্মান্তিক সব দৃশ্য। এর মাঝখানে একটা সড়ক দুর্ঘটনায় 6 জন না 8 জনের প্রাণ গেছে। দেখুন, আমি এখানে লাশ গুনতে বসিনি। 50 কোটি মানুষ যেখানে যায়, সেখান থেকে 50 জনের মরদেহ যদি ফিরে আসে, সেটা সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কার্যত একটা সমুদ্রে বাড়ি বিন্দুর মতো মনে হয়। কিন্তু একজন মানুষও মারা যাবেন কেন? আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে গরিব মানুষেরই জীবনের কোনো মূল্য নেই। এই মহাকুম্ভ এবং তাকে কেন্দ্র করে যে হিস্টেরিয়া গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে, সেটা হচ্ছে তার অভ্রান্ত নিদর্শন। দিন কতক আগে আমি একটি প্রতিবেশী রাজ্যে গেছিলাম, আপনারা জানেন। ফেরার সময় বিমানবন্দরে দেখি কলকাতাগামী বিমানে উঠবেন বলে বেশ কয়েকজন এই শহরের ডাক্তার, তারা মহাকুম্ভ থেকে পুণ্য স্নান করে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিল। আমিও, আমার কান খাড়া ছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম এক ডাক্তারবাবুকে, আপনি একা গিয়েছিলেন? তিনি বলেন, না, গোটা পরিবার নাকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে প্রয়াগে মিলিত হয়েছে। আমি বললাম, এই যে কুম্ভে স্নান করলেন, কি আপনার মনস্কামনা? উনি একটু থতমত খেয়ে বললেন, না, সেইভাবে তো কোনো মনস্কামনা নেই। তাহলে কুম্ভে গেলেন না? তিনি বললেন, গেলাম হুজুকে পড়ে, সবাই যাচ্ছে, আমিও গেলাম। তার চেয়েও মজার ঘটনা শুনলাম ওই শহরে পরিচিত একজন বয়স্ক নাগরিকের। তিনি বললেন, তারা 6 জন 65 ঊর্ধ্ব বন্ধু ওখান থেকে গাড়ি করে
দুরাত্রির জেগে প্রয়াগে পৌঁছেছিলেন। পৌঁছে কোনো একজন পরিচিতের টেন্টে 5-6 ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়ে ওই প্রয়াগের জলে ডুবকি দিয়ে আবার সেই গাড়ি ধরে দুরাত্রির পথ অতিক্রম করে ফিরে এসেছে। এই যে দুটি ঘটনার কথা বললাম, এই দুটি ঘটনা আসলে মহাকুম্ভ ঘিরে একটা যেন মানুষের মধ্যে হুজুক এমন একটা মাত্রায় পৌঁছেছে যে কুম্ভে যদি একবার না যাওয়া যায় তাহলে ইজ্জতই থাকে। দেখুন, ভারতবর্ষ এমনিতেই ভক্তদের দেশ এবং ভক্তি জাগিয়ে দেওয়া সবচাইতে সহজ কাজ, এবং সেটা যদি 144 বছর পরে হওয়া মহাকুম্ভকে ঘিরে হয় তাহলে তো কথাই নেই। আমার বক্তব্য হলো, এই মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার আগে যোগী প্রশাসন এবং মোদী প্রশাসন যেভাবে একটা প্রচারের ব্লিটজক্রিগ দেশব্যাপী শুরু করেছিল, এটা তারই পরিণতি, অন্য কিচ্ছু না। যোগী কেন এ কাজ করেছেন তার ব্যাখ্যা আছে, আমি সেই ব্যাখ্যার মধ্যে এখনই যাচ্ছি না। কিন্তু আমার কথা হলো, যেহেতু এই হিস্টেরিয়া এখন প্রতিটা জনপদে ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, অতএব হঠাৎ মনে হচ্ছে ভক্তদের ভিড়ের সামনে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তার পরিবহন যন্ত্র, সবকিছু কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। জানি এই কথা বলার জন্য আমাকে গাল অনেক খেতে হবে, কিন্তু ফ্যাক্টটা তো তাই। গতকাল দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে, আমি দিল্লিতে প্রায় 9 বছর বাস করেছি, এটা কোনো সভ্য দেশের রাজধানীর রেল স্টেশনে ঘটতে পারে? আমি ওই বিভৎস দৃশ্যের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি না, শুধু জনা কয়েক ভিকটিম যারা পরিবারের স্বজন হারিয়েছেন তাদের বক্তব্য আপনাদের শোনাচ্ছি। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जो पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी, प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था, जो गाड़ियां जहां से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से, हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई थी। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से, हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे, सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना, तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कितना समझा लो समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग, उसकी वजह से और धक्का मुक्की हो गई।
उसी चक्कर में वो सब लफड़ा होगा। स्टेशन पे था, हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई। तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी। तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। रेल प्रशासन हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया। और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा। 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार। क्योंकि भीड़, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी। MLC वगैरह, हाँ, उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या? नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांग है, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना। और कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा और मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। आए थे मुख्यमंत्री भी आए थे, आतिशी जो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे, और भी लोग आए थे। कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ, इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है। और डेथ, वो जिनकी डेथ हुई है उनके बाद उनका नहीं पता, अभी कुछ पता नहीं मुझे। कौन था आपका? मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई थे। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी स्थिति अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब देखिए कितना अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आ रहे थे महफूज साहब? प्रयागराज जा रहे थे हम, तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं। अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी है। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। सब घर जा रहे हैं। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हालत यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। 9 बजे लोग थे लगभग? कितने लोग थे लगभग? 30 आदमी डेट किए हैं। 30 आदमी अपना एकदम सबकी घिस बाहर अथी कर रहे थे, सब मरल है। आपके साथ कौन था? भगदड़ मच गई थी? हाँ, बड़ा भगदड़। और क्या हुआ? आप थे क्या? खाली आपके साथ कौन लोग थे? कितने लोग थे आपके साथ? एगो हम थे, एगो मेरा मामी था, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो भगदड़ क्यों हुई? क्या वजह थी? किस मतलब सब चढ़ रहे थे ना, उन्हें कुंभ मेला के है ना मेला सर,
वही सब चढ़ रहा हुआ हाँ। एगो एनएस चढ़ रहा ऊपर से नीचे हो रहा वही सब में हो गया। अच्छा, वही सब पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई इंसान सब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा, कितने लोग घायल हुए, कुछ अंदाजा? 30 आदमी से ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर आए? आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा अच्छा। और भी कोई लोग हैं? कोई नहीं। यहाँ पर अभी आपको पता है कितने लोगों को लेके आए गए यहाँ पे? 3-4 को देखने लेके आया था। आप रहने वाले कहाँ के हो भाई? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार से दिल्ली आए थे। कौन सी ट्रेन? अभी कैसी है मामी की हालत? मिलने दिया गया आपको? আপনারা দেখলেন, শুনলেন, দিল্লি স্টেশনে যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রায় সব প্রান্তে প্রয়াগগামী ট্রেনের উপর কি ধরনের চাপ মানুষের পড়ছে এবং কি অবস্থায় তাদেরকে যাতায়াত করতে হচ্ছে সে সম্পর্কে কয়েকটি টুকরো ক্লিপিং আমি একত্র করেছি, আপনাদের দেখাবো। দেখতে থাকুন। ये तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर जमकर पथराव हुआ। दरअसल हुआ क्या, ध्यान से समझिए। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं ने बिहार के समस्तीपुर में 12-561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर ही धावा बोल दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि श्रद्धालु एसी बोगियों के शीशे तोड़कर अंदर घुसने लगे। यह घटना मधुबनी से दरभंगा के बीच शुरू हुई, जब श्रद्धालु ट्रेन में सवार नहीं हो सके। गुस्साए श्रद्धालुओं ने ट्रेन की M1 से लेकर B5 बोगी पर हमला कर शीशे तोड़ डाले। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 6 बोगियों के शीशे तोड़ डाले गए। इस घटना के बाद एसी कोच में बैठे यात्री डरे सहमे नजर आए। ट्रेन में हुई तोड़फोड़ के कारण कई यात्री घायल भी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही समस्तीपुर रेलवे अस्पताल की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उन्हें भी उल्टे पांव लौटना पड़ा। रेलवे पुलिस भी श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने अब बेबस नजर आई। बता दें, महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब हर जगह से उमड़ पड़ा है। पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में लाखों वाहन पहुंचे हैं और हर घंटे करीब 8000 वाहन संगम नगरी पहुंच रहे हैं। समस्तीपुर स्टेशन पर श्रद्धालु एसी बोगियों की खिड़कियों से चढ़ते दिखे। पूरा नज़ारा जनरल बोगी जैसा लग रहा था। पार्सल वैन भी श्रद्धालुओं से भर गई थी। इस घटना के कारण ट्रेन करीब 1 घंटे देरी से चली। इस दौरान स्टेशन पर पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ट्रेन से अपनी यात्रा नहीं कर पाने वाले यात्रियों ने अपना टिकट वापस कराने की बात कह डाली। हम लोग पैसा दिए, फिर अगर सब कोई बिना टिकट कहीं जाएगा, वो दिल्ली जाना है। हम लोग बिग फैमिली, हमारा कंफर्म टिकट है और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया है। अगर हम लोगों को टिकट नहीं रहेगा तो टीटी लोग जो है वो उलूल जुलूल फाइन मारते हैं और ये आरपीएफ का स्टाफ होके बोलता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वही टीटी नहीं नजर आ रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं जब एसी में इस तरीके की स्थिति है तो स्लीपर डिब्बे का क्या हाल होगा। कोई व्यवस्था प्रशासन का यहाँ नहीं है। मेरा भी टिकट है, नहीं जा रहा था प्रयागराज। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर हैं, जहां पर सभी लोग शाही स्नान करने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, त्रिवेणी के लिए। आप स्थिति देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो आप अलग अलग जगहों से वीडियो देख रहे हैं कि ट्रेन की स्थिति क्या है, स्टेशन की भीड़ क्या है। आप देख सकते हैं एसी से कितने लोग चढ़ रहे हैं और उतरने के लिए जो है वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ आ चुके हैं। कई परिवारों से हम बातचीत करने की कोशिश भी किए और देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो ट्रेन की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी, और सभी लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये एसी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आप नज़ारा देख सकते हैं, आगे का भी नज़ारा। ये जो है मगध ट्रेन है जो कि जा रही है और ये देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवारों के साथ शाही स्नान में डुबकी लगाने के लिए जो है कि ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए, मेरा बर्थ भी हमको पहुंचवाइए, चाहे आप मेरे साथ, मेरा फैमिली है। हाँ चलिए, चलो। भीड़ में ऐसे नहीं जाएंगे, पैसा दिए है ना। मेला चल रहा है तो क्राउड मैनेजमेंट नाम का चीज है कि नहीं है? कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, क्यों, किस चीज का हम लोग पैसा दिए है? फिर अगर सब कोई बिना टिकट कहीं जाएगा, खुल गया ट्रेन। ये देखिए, हम लोग को दिल्ली जाना है
हम लोग विद फैमिली, हमारा कंफर्म टिकट है और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया है। अगर हम लोगों को टिकट नहीं रहेगा तो टीटी लोग जो है वो उलूल जुलूल फाइन मारते हैं और हम लोग को ट्रेन से नीचे उतार देंगे। आपकी ट्रेन छूट गई? जी, यही मेरी ट्रेन है। इतना भीड़ है, थर्ड एसी में भी नहीं जाने दिया जा रहा है और ये लोग बिना टिकट के जा रहे हैं। तो फिर क्यों हम लोग टिकट लेके, हम लोग मूर्ख है क्या? हम लोग गधे हैं तो टिकट लेके जा रहे हैं थर्ड एसी में आपकी? जी, और ये आरपीएफ का स्टाफ होके बोलता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयागराज जा रहे हैं, गाड़ी का गेट नहीं खुल रहा है, कैसे हम लोग जाएं? हाँ, अंदर से दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर से आदमी बंद कर दिया है। तो कहाँ कैसे जाएं? गेट बंद हो गया तो रिजर्वेशन हो चुका है। हाँ, उसके बाद भी गेट बंद है। हाँ, भीड़ भी इतना है, कैसे चढ़िएगा? तब कहाँ चढ़ने का मौका है? किसी दूसरे डिब्बा में जाइएगा। तब कहाँ से जगह है? वहाँ पर देखने पब्लिक जाम है। यहाँ पर खोला रहा ना, डरामा करो। गेट जान के बंद कर लिया कि बोरा बक्कू धरता आदमी चढ़े ठकाने। दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत है खाली। कहाँ जाएगा? तू नहीं जाने कहाँ जाएगा? स्नान करने के लिए। हाँ, वो जब नहाए जाएगा। कैसे ट्रेन चढ़िएगा? सगम पर जाएगा। इतना भीड़ में कैसे चढ़िएगा ट्रेन में? कैसे चढ़िएगा? तो अब अपन लौट के घर जाए का करब जाए। टिकट कन्फर्म है लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है। 90% विदाउट टिकट है। मैं नेपाल से हूँ, मेरा टिकट है सर। प्रयागराज जाना है, टिकट कन्फर्म है लेकिन ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जी, A6 में है, A6 में ये देखिए 6 टिकट कन्फर्म है लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तोड़फोड़ तो उधर से होके आया है, दरभंगा तरफ से। यहाँ पे तोड़फोड़ नहीं हुआ है, कहीं कहीं हुआ है। जैसे अभी देख लीजिए तोड़ ताड़ के कैसे आए जा रहे हैं। पूरा सब प्रशासन का दोष है, टोटल प्रशासन का दोष है, प्रशासन की लापरवाही है। एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है। 90% विदाउट टिकट है। क्या कर रहे हैं आप लोग? रिपोर्टिंग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दंगे फसाद कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए जबरदस्ती घुस के क्या किया है। जबरदस्ती नहीं घुस रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग? सबको इधर उधर दिखा रहे हैं कैमरा। इधर घुसते समय क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग? घुसते समय भी दिखाइए। बोलिए कहाँ फोड़ा? वहाँ मधुबनी में फोड़ा है, मधुबनी में फोड़ा है शीशा। तक के जा रहे, डर नहीं लग रहा है सर? फिर मेरा लाट छूट जाएगा। मैं नेपाल से हूँ सर, मैं नेपाल से हूँ, मेरा टिकट है सर। दूसरा मेरा दोस्त के साथ, मैं एक साथ ही में कटाया। वो सर लोग मेरे धक्का मार के निकाल दिया। मेरे दोस्त लोग का टिकट है, सब छूट जाएगा। मैं नेपाल से है, मैं तो फिर क्या करें? मतलब कंट्रोल से कि एक आदमी का तबीयत खराब है, ये भीड़ के कारण हम लोग मतलब भीतर नहीं जा रहे हैं। हम लोग के मतलब मेल नर्स साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर भी है, मतलब सब लोग, तो हम लोग साथ हैं लेकिन जाने नहीं दे रहा है, मतलब अटेंड करने के लिए भारी भीड़ के। নমস্কার। যা বলার আমি অনেকটা ভিডিওতেই বলে দিলাম। উপসংহারে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এই প্রবণতা যদি অবিলম্বে বন্ধ না হয় তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আদিত্যনাথের এই রাজস্ব যজ্ঞের আয়োজন করা, অর্থাৎ হিন্দুত্বের ভোটকে কনসলিডেট করে নিজের ইন্ডিসপেন্সিবিলিটি বিজেপি দলে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার যাতে মোদির অটোমেটিক উত্তরসূরি হিসেবে তাকে ভাবা যায় এবং
সন্ত সমাজ ও বিবিধ আখড়ার সমর্থন জোগাড় করা যায়। তাছাড়া এর ফলে একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংগঠক হিসেবে আদায় করা যায়। এটাই তো যোগী আদিত্যনাথের খেলা। কিন্তু যেটা সবচাইতে মর্মান্তিক সেটা হলো মহাকুম্ভের শুরুর দিন থেকে এই সব ঘটনায় ধাক্কা খাওয়ার পরে আগে পর্যন্ত যেভাবে এই কুম্ভের আয়োজকরা বড় লোক, ভিআইপি আর প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের এবং তাদের পরিবারের লোকেদের চাপলুসি করেছে, সেসব ছবি তো আমরা দেখেছি। নৌকো বিহার করছেন কেউ, মনে হচ্ছে যেন প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে। সেই সব নৌকো কি সাজানো, মনে হচ্ছে দেবী চৌধুরানীর বজরার মতো দেখাচ্ছে। একদিকে যখন ভিআইপিদের এত কদর, ফেলো করি মাখো তেলের একটা সমান্তরাল সুবিধের ব্যবস্থা, সেখানে গরিবের জায়গাটা কোথায়? যোগী আদিত্যনাথ শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, 26শে ফেব্রুয়ারি শুনতে পাচ্ছি মহাকুম্ভ স্নান পর্ব শেষ হবে। তার মানে এখনো প্রায় দিন 10 বাকি। ভারতবাসী হিসেবে আমরা যাকে বলে উই ক্যান অনলি কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ক্রসড, এবং যে কোনো ঘটনাকে একটা প্রোপাগান্ডা ইভেন্টে পরিণত কিভাবে করতে হয়, অন্য কোনো কারণে না হলেও শুধু এইটুকু কারণের জন্যই বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যে রাজ্যে তাদের সরকারের নাম ইতিহাসে থেকে যায়। কুম্ভ মেলা আমিও দেখেছি, 15 দিন সেখানে থেকেছি হরিদ্বার। সেটা অবশ্য ছিল কংগ্রেসিজম। আমিও জানি যে নর্মাল কুম্ভ কত বছর অন্তর অন্তর হয়, আর এবছর কেন এটাকে মহাকুম্ভ বলা হচ্ছে সবই আমি জানি। কিন্তু আলটিমেটলি তো ব্যাপারটা কোনো প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে নেই, গোটাটাই একটা তথাকথিত অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অ্যালাইনমেন্টের উপর দাঁড়ানো। বলা হচ্ছে যে এই বৃহস্পতি মেষ রাশিতে, তারপরে মকর রাশিতে কি সব ভাবে ঘুরতে 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 এমন একটা কনস্টেলেশন হয় যেটা 144 বছর পরে এই প্রথম হচ্ছে। এটা কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়, এটা শিয়ার আনপ্রুভেন একটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ক্যালকুলেশন। আমি এই ক্যালকুলেশনের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে চাইছি না, কিন্তু যদি দেশের 50-60 কোটি হিন্দুকে ওই সঙ্গম স্থলে ডেকে এনে আপনি পুণ্যার্থী হিসেবে তাদের প্রত্যেককে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত, থাকার সুবন্দোবস্ত, স্নানের সুবন্দোবস্ত এবং নিরাপদে ফিরে আসার সুবন্দোবস্ত করতে না পারেন, তাহলে মনে রাখবেন আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই মহাকুম্ভের মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন,
তা কিন্তু বুমেরাং হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা উচ্চ। যে সরকার বলে এই কুম্ভ আয়োজনের পরে রাজ্যের কোষাগারে অন্তত 25,000 কোটি টাকা উদ্বৃত্ত আয় হবে, তাদের ভক্তিটা কতটা খাঁটি আর কতটা ভেজাল, সেই প্রশ্নই তো তুলে দেওয়া যায়। নমস্কার, শুভরাত্রি, ভালো থাকবে।